सबीराजीत सर आप डाल दीजिए, आशीष जी आप भी डाल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, आप डाल दीजिए। आशीष सर थैंक यू सो मच, आप भी डाल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। नो जो बात सॉरी आप डाल दीजिए। आज मुझे हमसे एक छोटी सी गलती हो गई, माफ़ी मांगना चाहूँगा कि गोपाल रॉय साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर थे, उनका नाम मैंने लेना भूल गया था। CLP रह चुके हैं, वन ऑफ आवर टॉलेस्ट लीडर्स। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। नो आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द त्रिपुरा कांग्रेस। सॉरी एक छोटी सी गलती गोपाल सर, मैं मांगना चाहूँगा कि गोपाल रॉय साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर थे, उनका नाम मैंने लेना भूल गया था। CLP रह चुके हैं, वन ऑफ आवर टॉलेस्ट लीडर्स। आई अपोलोजाइज। Namaskar. I take this opportunity to seek apology from the Congress family across the country that I was carried away by emotions and left the Congress, which is in my DNA, right from my student life. I was very much connected with this family. It's a great feeling that after a span of 4.5 years, I have finally reached the place where I started my political journey. It's a great feeling that I cannot describe in words. Obviously, now the question is, why did I think to leave Bharatiya Janata Party? Well, very briefly I should say, जो सपना मेरे साथ लाखों त्रिपुरावासी ने देखा था, 25 साल का एक सरकार को राज को खत्म करके एक नया सूर्योदय होगा त्रिपुरावासियों के लिए, अच्छा कुछ कार्य होगा जनता के लिए, ये सरकार इन सभी से दूर चल रहे हैं. Nowhere near are we to fulfill the promises that was being made prior to 2018 elections. A reign of terror has been let loose in our state. जितना भी चुनाव लोकल बॉडी से हुआ है, including the last parliamentary elections, were all rigged by the hooligans and musclemen, thereby completely making the election process a farce. All democratic institutions have come to a standstill. Democracy is being throttled. No one can call spade a spade in our state. Given the scenario, now the people, because Congress is in our DNA, बीजेपी के पास 1.57% वोट था 2018 चुनाव से पहले. हमें लोग जाने से कांग्रेस का जो पूरा वोट शेयर वो शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ. और आज मैंने राहुल गांधी से वादा की कि मैंने एक पाप की और प्रायश्चित हम लोग करेंगे जरूर. 2023 में कांग्रेस सरकार को वहां के स्थापित करके ही हमारा प्रायश्चित खत्म होगा. So this is the scenario that exists in our state, and we are in politics just for the sake of the people, and whatever the people desire, we'll accomplish that. Whatever they dream of, we'll accomplish that. And I believe I have chosen the right path. The gentleman, the leader of our party, I've been watching him. He speaks the truth. He is very innocent. He is concerned regarding the country. He doesn't know gimmick. But
We Indians we get carried away by emotions and gimmick. He is the right man who speaks from his heart, who speaks for his countrymen. Mr. Rahul Gandhi, I'm talking of. So I have chosen the right path. I have chosen the right person under whom the country and the countrymen will survive, will prosper in the coming days. That's it I have to say, and I urge upon all my countrymen to this press conference, please stand beside the Congress, our Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji. They are the two assets of the country, and in the coming days, I have no iota of doubt in my mind, that Congress is going to make a huge. It speaks the truth. It is on the right path. With these few words, I thank you once again for honoring me in such a good atmosphere. Thank you, ladies and gentlemen. बाकी जो टिक टैक में कर दिया तो we can take questions if you want, otherwise we can. It's been a long. फोटोग्राफ लेना है तो बता, हाँ बोलिए सर. आशीष सर, तो मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि बोलने के लिए, वो जो काम में ही विश्वास करते हैं यार. सर एक वर्ड तो बोल दीजिए सर. हिंदी में बता दें. हिंदी में जो भी है, बांग्ला में भी बोलना है, कुछ भी बात जो कंफर्टेबल. सबको स्वागत है. 4.5 साल पहले एक सोच को लेके हम लोग बीजेपी में ज्वाइन किया था, क्योंकि 25 साल हमारी यह लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की जो सरकार चल रहे थे उसको खत्म करने के लिए, उसका जो अनरूली एटमॉस्फेयर तब था उसको बंद कराने के लिए, और आगे लोगों का जो उम्मीद है ये सारे प्रत्याशा सब पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने ज्वाइन किया था. कई 4.5 साल में हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रॉम क्या है, जो लोगों के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा की डेवलपमेंट के बारे में सोच है. अनरूली पार्टी, अनरूली अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये आम जनता के खिलाफ चला गया. जनता की रोग अभी इस गवर्नमेंट के खिलाफ है. जितने दिन हम लोग बीजेपी में थे, हम लोगों का कोशिश जारी था. कई दफ़े हम दिल्ली भी आया, बीजेपी सेंट्रल लीडरों के साथ मिलके
जो स्टेट का हल है उसका थोड़ा सुधारने के लिए इन लोगों को समझाया, लेकिन सारे ये जो हमारा कदम हमने उठाया था वो विफल हुआ। आम आदमी की जो पुकार है, अभी ये बीजेपी को रोकना चाहते हैं, इसका गवर्नमेंट का जो एक्टिविटी है इसके खिलाफ है। तो आम जनता की सोच अभी राहुल जी के नेतृत्व में सारे देश में जो जागरण हो रहा है उसी के साथ त्रिपुरा वासी भी चलने के लिए तैयार हो गया। हम सबके मिलके राहुल जी जो इनका जो सोच है सारे देश की भलाई के लिए, सारे देश की आम आदमी जो इनके सोच को लेके अभी दोबारा कांग्रेस को सरकार में बिठाने के लिए तैयारी हो रहा है। हम इसी की साथ में लेके चलने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। अभी से हम राहुल जी, प्रियंका जी और हमारी पूजनीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में 2023 को सरकार बनाने के लिए जितना हम लोगों को परिश्रम करना चाहिए, जितना कठोर परिश्रम हम लोग करने के लिए तैयार है। थैंक यू। लास्ट में गोपाल से बोलो to say a word? नहीं? ओके। बीरजीत सिन्हा साहब एक मिनट के लिए बोल देंगे, हमारे पीसीसी हैं। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि बिना सेक्रेटरी, मैं बहुत खुश हूँ, पुराना साथी लोग कांग्रेस में वापस आया है। मैं बोलूँगा ये घर लौट प्रोग्राम है। तो अभी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो धर्मांतर सरकार है उसको खिलाफ में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में जो संघर्ष जारी रहा है उन लोग का योगदान में वो तेजी होगा, कांग्रेस बहुत मजबूत होगा। त्रिपुरा में हम लोग जो अल्टरनेटिव, त्रिपुरा में ओनली अल्टरनेटिव कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूत कर सकेगा। धन्यवाद, नमस्कार। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक फोटोग्राफ। आपको कैसा लगा? मतलब आपको ये फीलिंग आया कि क्योंकि जब वोटों का लुट हो रहा था मैं भाजपा में रह के भी आवाज उठाई इसके खिलाफ। आम जनता को वोट देने का हक है, बाधा प्राप्त मत करवाए, तो बाधा देना पाप है, ये डेमोक्रेसी में खतरनाक है। इसी से अगर अंदाजा चल जाता है कि तो वो आपका सोच, but I have decided this is the right party। मैं वेस्ट बंगाल में तृणमूल लड़ रही है, वहाँ पे भाजपा के खिलाफ ठीक है, लेकिन देश में भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है, ये जो डाल वो है भारतीय जातीय कांग्रेस। हाँ, चलिए सर, एक फोटो ले लीजिए हाथ उठाते हुए बढ़िया से। बढ़िया से, यस। संज्ञा